So in last lecture we have completed design of singly reinforced beam, and today we will start with the design of doubly reinforced beam. Right. So the basic difference between singly reinforced and doubly reinforced is, in singly reinforced beam the tension will be, or the tension reinforcement is provided in the tension zone, and in compression only the anchored reinforcements are needed, because in compression the concrete will take the all the compression forces, right? But where in doubly reinforced beam section, instead of only reinforcement in tension zone, some reinforcement you are going to provide in compression zone also, right? So the reinforcement which are provided in the compression and tension zone both, that beam is called as doubly reinforced beam, and for that both reinforcement you are going to design, right? So this is the simple diagram for the doubly reinforced beam. What is this? I am explaining you this portion. This is one of the uh, cross section for the doubly reinforced beam. As you can see, these are the reinforcement. Suppose this is the depth of neutral axis, right? This is the neutral axis. So below that, if it is simply support, then tension will be at bottom, compression will be at top. So here not only tension reinforcement like this is provided, which is known as area of steel in tension, AST, but compression reinforcements are also provided. So this is called the ASC, area of compression reinforcement, right? So for both this you need to design, जैसे हमने singly में किया for the design of AST only, now in doubly reinforced beam we required to design this area of compression steel also, right? Now how to do that? So this is the cross section of WB. WB वैसा होता है, राइट? सो दिस डब्ल्यू बीम की अगर आपको डिजाइन करनी है, सो वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू डिजाइन एज अ सिंगली बीम. पहले आपको क्या करना है, डब्ल्यू की डिजाइन करनी है तो आपको पहले सिंगली बैलेंस सेक्शन की डिजाइन करनी है, राइट? और फिर आपको एक ऑक्सिलरी सेक्शन की डिजाइन करनी है. तो अगर सिंगली सेक्शन है तो मतलब क्या होगा, रेनफोर्समेंट कहाँ होगा, ओनली एट द बॉटम. तो देखो इसमें दिस इज, इफ इट दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये टेंशन है, तो सिंगली में टेंशन में ही रेनफोर्समेंट आएंगे. तो सी दिस ओनली टेंशन इज हैविंग रेनफोर्समेंट, और ऑक्सिलरी सेक्शन इज द सेक्शन, एडिशनल सेक्शन which is having reinforcement at top also and reinforcement at bottom also, right? So that is called the auxiliary section. और इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे, बैलेंस सेक्शन सिंगली का और ऑक्सिलरी सेक्शन, then you will get this doubly reinforced beam section. So I am not going into the derivation part of this doubly reinforced beam because all the equations are available in IS 456, right? So we will directly start with the design only. So again, this is the doubly beam section. For doubly beam section, this is the stress diagram. जैसे सिंगली में है वैसे ही स्ट्रेस डायग्राम इज फॉर डबली, एंड सॉरी स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज स्ट्रेन डायग्राम. एंड जो स्ट्रेस डायग्राम है, तो जो सिंगली में कैसा था, रेक्टेंगल एंड पैराबोला लाइक दिस एंड दिस टेंशन. सो हियर इट इज total force C1. Now additionally provided reinforcement will also give the compressive stress. So that compressive stress over here is denoted as C2, right? So in doubly reinforced beam section, the total compressive force is equal to C1 plus C2. C1 is due to concrete
and C2 force is due to compression reinforcement, right? तो जैसे सिंगली बीम में क्या था, सिर्फ C1 फोर्स था कंक्रीट की वजह से, बिकॉज कंप्रेशन में कोई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट, और उसकी डिज़ाइन भी नहीं करते. बट हियर इन डब्ली the compression reinforcement are provided and this compression reinforcement will give the compressive force. So total force on this section, ये जो डब्ली का सेक्शन होता है उसमें जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स लगता है दैट इज C1 प्लस C2, राइट. एंड ऑल अदर दिस, ये डायग्राम सेम रहेगा जैसा आपने सिंगली में किया था, ठीक है. और जो रेनफोर्समेंट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, CG ऑफ द कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट. तो ये है आपका C2, राइट. सो बाय डूइंग सम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, simple moment is equal to force into lever arm distance, you will get all the equations which are given in IS 456. So I am not going deep into this, I will explain each and every equations, but we are not going into the some mathematical steps. So the first condition for the doubly reinforced for the design purpose is that is the apply moment is more than the resisting or limiting moment of the beam. Then this kind of beam you need to design as a doubly reinforced beam, and reinforcement are provided in both tension and compression area. सिंगली में हम कंप्रेशन में प्रोवाइड करते हैं, बट दैट इज कॉल्ड द एंकर्ड रेनफोर्समेंट विच आर नीडेड टू बाइंड योर रिंग स्टीरअप्स. अदरवाइज उसकी डिज़ाइन नहीं करते, वो हम मिनिमम 2 नंबर्स 12 mm डाल देते हैं, लेकिन कंप्रेशन में आपको वो कंप्रेशन के रेनफोर्समेंट फाइंड करने होते हैं. And this is given in annexure G, G1.2, right. So write down this data for the doubly beam design. So it is given design a simply supported beam of effective span 8 meter. Here direct effective span is given. If direct some values are given, that step you can skip. So effective span 8 meter subjected to imposed load of 35 kN per meter. The beam dimension and other data B and D is also given. Use M20 FE414. चलो भी क्लियर. Yes. ओके, तो चलो अभी क्या होता है, एज आई एक्सप्लेन ओवर हियर दैट डब्ली की बीम डिज़ाइन करनी है हमें. तो डब्ली की बीम डिज़ाइन कैसे होती है, पहले आपको सिंगली बैलेंस सेक्शन की डिज़ाइन करनी है और एक ऑक्सिलरी सेक्शन की डिज़ाइन करनी है, ठीक है. तो ये चीज़ माइंड में रख के इफ़ आई वांट टू फाइंड the moment ड्यू टू डबली रेनफोर्स बीम, तो वो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, सिंगली बैलेंस सेक्शन. इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था बैलेंस सेक्शन मीन्स XU इज इक्वल टू XU लीम. एंड सेम वे फॉर बैलेंस सेक्शन MU क्या होगा, MU लीम होगा. MU इज इक्वल टू MU लीम, ठीक है. तो सिंगली बैलेंस सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, MU लीम, प्लस ये ऑक्सिलरी सेक्शन की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा वो होगा MU2, ठीक है. तो दिस इज टोटल मोमेंट ऑन डब्ल्यू सेक्शन, दिस इज मोमेंट ड्यू टू सिंगली बैलेंस सेक्शन एंड दिस इज मोमेंट ड्यू टू ऑक्सिलरी सेक्शन, ठीक है. नाउ दिस MU वैल्यू ये आपके पास होगा, दिस वैल्यू यू विल बी हैविंग, कहाँ से होगा, फ्रॉम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको पता है, सिंगली में भी हमने किया था, वॉट एवर इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट वी आर कंसिडरिंग एज MU. तो ये चीज़ आपके पास होगी. दिस ऑल्सो यू कैन फाइंड फ्रॉम SP16
पे भी मैंने बताया था, फ्रॉम एनेक्स्चर जी ऑल्सो यू कैन फाइंड मोमेंट MU लिम। और आप डिज़ाइन करते होंगे तो आपको MU ग्रेटर देन MU लिम मिलेगा बैलेंस डब्ली की डिज़ाइन करने के लिए। तो ये MU भी होगा आपके पास, MU लिम भी होगा। तो दिस टू वैल्यू यू हैव, so unknown value will be MU2, that is moment due to auxiliary section where compression and tension both reinforcement will be there. So MU2 is equal to MU minus क्या होगा MU lim। ठीक है, तो अगर MU माइनस MU लिम करोगे तो आपको मोमेंट सेक्शन मिलेगा। सो आई एम ओपनिंग IS 456 and same clause we required to use is annexure G, right? So this is my annexure G। तो यहाँ पे आपको ये क्लोज है G1.2 सेक्शन विथ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, मतलब ऐसा बीम जिसमें कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की आप डिजाइन करते हो। सो वेरी फर्स्ट इक्वेशन इफ यू कैन सी इज ओवर हियर। देखो यहाँ पे लिखा है MU माइनस MU लिम। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, MU माइनस MU लिम का क्या होता है वैल्यू MU2। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इक्वल टू के बाद का, दिस इज द टर्म MU2। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. हाँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, MU एंड MU लिम ND आर सेम एज इन G1.1। G1.1 में जैसे हम MU लिम यहाँ से फाइंड करते हैं, ठीक है, और MU हम कहाँ से फाइंड करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि MU2 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है देखो, FSC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। अब ये क्या है देखो, मोमेंट क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू लीवर आर्म डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, ये है आपका कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेशन जोन में जो होता है। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ये जो है ओवर हियर, ये जो है यहाँ पे ये C2 फोर्स है। तो C2 फोर्स कौन सा है, C2 फोर्स अगर हम मुझे फाइंड करना है तो वो क्या होगा, C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा एरिया आता है, यहाँ पे कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट है। तो कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट का एरिया क्या होता है, ASC, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। और फोर्स के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का सिंबल क्या होता है, F, स्ट्रेस इन स्टील। पर स्ट्रेस इन स्टील पर कहाँ पे है ये स्ट्रेस, कंप्रेशन जोन में है, तो FSC। सो स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। यहाँ पे एक और चीज़ मल्टीप्लाई माइनस किया है, माइनस FCC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन, स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में स्ट्रेस क्या होता है मैक्सिमम, कंक्रीट का 0.446 FCK। ठीक है, तो FCC की वैल्यू आपको ये लेनी है। ये आपको तो पता है मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है कंप्रेशन जोन में, 0.446 FCK। तो FCC क्या हुआ, 0.446 FCK। और ये FSC है। FSC का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस इन स्टील बट इन कंप्रेशन। अब स्टील जो है वो कंप्रेशन में कितना स्ट्रेस देता है वो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये C2 फोर्स। तो ये जो C2 फोर्स है वो फोर्स यहाँ पे देखो लिखा है FSC। यहाँ पे FCC की वैल्यू इग्नोर की है, कोड में ये FCC की वैल्यू इग्नोर की है। क्यों इग्नोर की है, बिकॉज
the value of this FCC is far more than the FCC. 0.446 FC के करोगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी होगी FSC के सामने. That's why the code has neglected this FCC. So only value available for this force is ASC into FSC. तो यहाँ पे देखो ASC into FSC लिखा है. और ये क्या है, लीवर आर्म डिस्टेंस. लीवर आर्म डिस्टेंस अगर यहाँ पे देखोगे तो ये फोर्स से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये होगा d माइनस डी डैश. यहाँ पे डी डैश का मतलब क्या हुआ, डी डैश मीन्स ये डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ द सेक्शन टू मिडल ऑफ योर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, तो वो होगा डी डैश. डी डैश इज नथिंग बट द टॉप कवर. इज इट क्लियर एवरीवन? यस. ठीक है, तो ये होगा आपका टॉप कवर. तो देखो कंक्रीट में C1 का वैल्यू आपको पता था. C1 का वैल्यू आपको मैंने डेरिवेशन में कराया था कि हाउ टू फाइंड C1, दैट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इनटू स्ट्रेस प्लस एरिया ऑफ दिस पैराबोला इनटू स्ट्रेस. फ्रॉम दैट यू विल गेट द C1 फोर्स. और C2 फोर्स कहाँ से मिलेगा? C2 इज ड्यू टू कंप्रेशन रेनफोर्समेंट. तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए कंप्रेशन एरिया मल्टीप्लाई करना है विथ कंप्रेशन स्ट्रेस, और ये एफसीसी की वैल्यू निगलेक्ट की. ठीक है, और एफएससी माइनस एफसीसी क्यों किया? जनरली क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट है तो इतना जो एरिया है यहाँ पे दो स्ट्रेस लग रहे हैं. एक तो कंक्रीट का भी स्ट्रेस लग रहा है, एक तो स्टील का भी लग रहा है. तो हमें तो प्योरली स्टील चाहिए, तो इसलिए क्या किया, स्टील में से कंक्रीट को माइनस किया. बट वो माइनस करके भी इक्वेशन बनता है, वो इग्नोर करोगे देन ऑल्सो इट विल ओके, बिकॉज एफएससी वैल्यू विल बी फार मोर देन द एफसीसी. तो इस तरीके से हमें C2 का फोर्स मिल रहा है. और C2 मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म डिस्टेंस करो तो आपको मिल जाएगा ये इक्वेशन. तो MU2 का इक्वेशन फिर आपको मिल जाएगा ये. ठीक है, तो यहाँ पे MU माइनस MU लिम इज इक्वल टू MU2 नहीं लिखा है, इंस्टेड ऑफ MU2 का इक्वेशन यहाँ पे लिखा है FSC ASC D माइनस डी डैश. तो आपको क्या होगा, आपके पास एज आई मेंशन कि MU2 यहाँ से आपको मिल जाएगा. वंस यू गेट द MU2 तो यहाँ पे अननोन वैल्यू क्या है, देखो D और D डैश आपको मिल जाएगा. FSC कैसे फाइंड करना है, तो FSC फाइंड करने के लिए आपको ये स्ट्रेन की वैल्यू लेनी है. राइट, अभी मुझे फाइंड करना है स्ट्रेस FSC. तो हमारे पास क्या है, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेन सॉरी इज इक्वल टू ये है यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, तो मुझे अगर ये स्ट्रेस चाहिए तो मैं क्या करूँगी, E मतलब स्ट्रेन और यंग मॉड्यूलस को मल्टीप्लाई करूँगा तो E इंटू स्ट्रेन. बराबर, तो ये जो स्ट्रेन है ना वो स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे लिखा है. दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेन. ये है स्ट्रेन का इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ से आपको स्ट्रेन मिल जाएगा और ये है आपका यंग मॉड्यूलस. तो यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 2 इंटू 10⁵. ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, FSC. सो यू विल हैव FSC वैल्यू, यू हैव D माइनस डी डैश. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन. जैसे AST मिलता है वैसे यहाँ से आपको ASC मिल जाएगा. डायरेक्ट ASC की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम. ठीक है, तो यहाँ से मुझे देखो, ये अगर ये फिगर में मैं देखूँ, ये फिगर में मैं देखूँ, देन यहाँ ये जो इक्वेशन से मुझे यहाँ का एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा ऑक्सिलरी सेक्शन का. यहाँ पे तो कोई स्टील है ही नहीं कंप्रेशन में, तो मुझे फाइनल डब्ली के लिए जो ASC है वो इक्वेशन से मिल जाएगा. सो आई हैव डिराइव विद वन एरिया फ्रॉम इन कंप्रेशन. अभी यहाँ पे मुझे डब्ली के लिए मुझे ये AST चाहिए, एरिया ऑफ स्टील डब्ली का. डब्ली के लिए क्या मैंने बोला कि ये है हमारा बैलेंस सेक्शन, सिंगली का बैलेंस सेक्शन.
और ये है मेरा ऑक्सिलरी सेक्शन, राइट। ये है सिंगली बैलेंस सेक्शन। तो मुझे अगर ये AST चाहिए तो टोटल AST ऑफ डब्ल्यू के लिए मुझे क्या मिलता है कि पहले मुझे ये सिंगली बैलेंस सेक्शन का एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। तो सिंगली बैलेंस सेक्शन का एरिया ऑफ स्टील मतलब बैलेंस सेक्शन है, इसलिए मैं क्या लिखती हूँ, लिम। बैलेंस सेक्शन, जब भी बैलेंस सेक्शन हो तो XU इज इक्वल टू XU लिम होता है, MU इज इक्वल टू MU लिम, दिस आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर ऑल्सो, और एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू AST इज इक्वल टू AST लिम। ठीक है, तो ये मुझे AST लिम प्लस यहाँ पर भी स्टील है, ये है मेरा AST लिम, दिस इज माय AST लिम। कैसे फाइंड करना है आई विल एक्सप्लेन। और ये जो है मेरा ऑक्सिलरी सेक्शन का, तो ये ऑक्सिलरी सेक्शन को मैं AST2 लिखती हूँ, सो AST। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मैं एडिशन करूँगी देन आई विल गेट दिस एरिया ऑफ स्टील माई ऑफ माई डब्ल्यू सेक्शन। मुझे ऊपर का भी मिल गया, नीचे का भी मिल गया, मेरा डिज़ाइन इज ओवर, राइट। अभी ये जो AST लीम है कोड में, इंस्टेड ऑफ AST लीम यहाँ पे लिखा है AST1 प्लस AST2, तो मुझे मिल जाएगा AST एरिया ऑफ स्टील फॉर द डब्ल्यू सेक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द फाइनल इक्वेशन इज गिवन ओवर हियर। तो टोटल एरिया ऑफ टेंशन reinforcement shall be obtained by AST1 plus AST2. Is it clear everyone? Yeah. देखो AST में क्या लिखा है, एरिया ऑफ टोटल टेंशन reinforcement। AST1 में क्या लिखा है, एरिया ऑफ टेंशन reinforcement फॉर अ सिंगली reinforced सेक्शन फॉर MU limb। MU limb में से जो AST limb मिलता है वो हमें फाइंड करना है, तो बैलेंस सेक्शन। अभी क्या होगा कि ये इसमें से आपको ये मिल जाएगा। अभी हाउ टू फाइंड दिस AST2? AST2 is the auxiliary section का टेंशन के reinforcement. So to get this, one more equation is given to find the AST2 auxiliary section का, ASC FSC upon 0.87 Fy. So from this equation you can find AST2. आपको AST2 मिल जाएगा, आपको AST1 बैलेंस सेक्शन में से मिलेगा, यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ स्टील। तो आपको ASC भी मिल गया, यहाँ से ये इक्वेशन में से you will get AST also. Once you have area of steel in compression and tension, your design will over. चलो, is it clear everyone? Yeah. तो इतने ही इक्वेशन है, आपको ये कोड खोल के ही बैठना है फॉर द डिजाइन पर्पस। नाउ वी आर डूइंग द डिजाइन ऑफ दिस डब्ल्यू reinforced बीम सेक्शन। अभी इसमें क्या है, देखो इफेक्टिव स्पान इज डायरेक्टली गिवन, सो L इफेक्टिव इज गिवन एज 8 मीटर। देन beam dimension is also given, E is equal to 300 mm and capital D is equal to 700 mm। तो ये दे दिया है, तो कितने स्टेप्स हमारे स्किप हो गए। स्टेप 1 जो हम फाइंड करते थे क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, तो वो हमारा निकल गया। स्टेप नंबर 2 Step 2. इफेक्टिव स्पान भी हम फाइंड करते थे, वो भी हमारा निकल गया। सो डायरेक्टली वी विल जंप इनटू द स्टेप 3। व्हाट इज दैट? Load. लोड कैलकुलेशन। वेरी गुड, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टेप 3 नहीं लिखती हूँ, आई एम स्टार्टिंग विद स्टेप 1 ओनली टू फाइंड डिजाइन लोड। तो आपको डेटा में क्या दे दिया है वो देख लेना है, अगर दिया है तो वापस से वो स्टेप नहीं करना है आपको। सो स्टेप 2, नाउ ओवर हियर इम्पोज वैल्यू इज गिवन 35 kN/m, मतलब लाइव लोड दे दिया है, डेड लोड नहीं दिया है। सो वी विल फाइंड फर्स्ट डेड लोड। चलो आप मुझे बताओ कैसे करते हैं डेड लोड। व्हाट इज डेड लोड?
self weight of beam. How to find self weight of beam? Density into cross section area. into क्रॉस सेक्शन एरिया. तो क्रॉस सेक्शन क्या है हमारा 300 and 700. राइट, ये है किलोमीटर पर मीटर क्यूब, तो हमें चाहिए मीटर में. सो 0.300 इंटू टोटल डेप्थ चाहिए यहाँ पे, तो 0.700. चलो फाइंड करके दो. दिस self weight will be in kilonewton per meter. चलो क्विकली फाइंड आउट self weight of beam. 5.25. 5.25. So this is my self weight of beam. No other data is given, so this is only my dead weight value we require to use. Then live load. Live load is given as 35 kN per meter. So live load is equal to 35 kN per meter. Right. So I can write total load is equal to dead load प्लस लाइव लोड. चलो कैलकुलेट करके दो कितना होगा. 40.25 किलो न्यूटन पर मीटर. सो दिस इज माय टोटल लोड. नाउ मुझे क्या चाहिए, लिमिट स्टेट डिजाइन करनी है. तो लिमिट स्टेट डिजाइन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लोड को Partial safety. टोटल लोड Factor of safety से multiply. टू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पीएसएफ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, पीएसएफ. राइट, फैक्टर लोड भी बोल सकते हो, डिजाइन लोड भी बोल सकते हो. चलो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड इज 1.5. चलो डिजाइन लोड मुझे बताओ, WD 60.375. 60.375 kilonewton per meter. So this is my design load. ठीक है. चलो once you have design load, what is step 2? डिजाइन लोड मिल गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो लोड को बीम के ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा. स्ट्रेस जनरेट करो तो क्या मिलेगा आपको, बेंडिंग मोमेंट. टू फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. हाँ चलो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्ट बीम है. तो सिंपली सपोर्ट बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, सेंटर पे कैंटिलीवर होगा तो WL/2. ठीक है. चलो तो दिस इज 60.365. 60.375. इफेक्टिव लेंथ इज गिवन एज 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 8. चलो बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, MU की वैल्यू किलो न्यूटन इंटू मीटर 482. 482. Right, so this is your actual moment on the beam. इतना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. चलो what else now? Ma'am, 483. 293. 483. Okay, 483. चलो उसके बाद क्या करना है, आपको मोमेंट मिल गया. उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, MU lim. MU lim. So step 4 to find MU lim. ठीक है. चलो कहाँ से मिलेगा MU lim, डायरेक्ट यूज SP16. ठीक है. Double D. हाँ क्या
टेबल डी। टेबल डी, यस। आप SP16 ही यूज करो, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ है। देन आफ्टर डायरेक्टली यूज SP16, so that will be easy for you to manage with the time. So mu lim by BD square, टेबल नंबर D। चलो हमारा कौन सा ग्रेड है, M20 FE 415 है। So this is 415, right? This is 415। यहाँ पे देखना है, और ये M2 जनरली M20 415, ये वैल्यू याद ही रखने का 2.76, राइट। सो फ्रॉम SP16 टेबल डी, mu lim by BD square is equal to 2.76। अभी यहाँ पे ना स्मॉल डी लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कैपिटल डी यू हैव, कैपिटल डी इज इक्वल टू 700 mm। तो इसमें से आपको इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करनी है, इफेक्टिव डेप्थ। चलो कैसे आएगा इफेक्टिव डेप्थ, अब तो मैंने आपको बताया था, इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू स्मॉल डी। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, देखो ये है आपका बीम, तो ये है पूरा कैपिटल डी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट आएगा 1 2 एंड 3 सपोज, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये इसका सेंटर, रेनफोर्समेंट का सेंटर से ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा आपका स्मॉल डी, ये वैल्यू चाहिए। तो कैसे मिलेगा मुझे, क्लियर कवर माइनस और हाफ ऑफ डायमीटर। ये होगा मेरा, दिस इज माय क्लियर कवर, और ये होगा डायमीटर। सो स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस क्लियर कवर माइनस हाफ ऑफ डायमीटर एट बॉटम, बराबर। तो मैं क्या करूँ, 700। व्हाट इज मिनिमम कवर प्रोवाइडेड फॉर बीम, 20। और अभी हमें पता नहीं कि हम कौन सा डायमीटर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम इज 12, तो 12 के लिए वी कैन फाइंड द स्मॉल डी। कितना आता है स्मॉल डी, 674। 674, ठीक है। तो अभी फॉर इनिशियल वी विल यूज दिस 674 फॉर द कैलकुलेशन। चलो यहाँ से फाइंड करो, पुट द वैल्यू ऑफ 674 एंड फाइंड आउट mu lim। B is equal to 300, 376.14 kN. 376.14 Yes, 6.14. kilonewton into meter, right? So this is my mu lim, राइट। सो मेरे पास mu भी हो गया, mu lim भी हो गया। एग्जाम में तो आपको पता ही नहीं होगा वेदर इट इज सिंगली और डबली। अभी तो मैं अभी आपको बता दिया कि हम डबली की डिज़ाइन कर रहे हैं, बट एग्जाम में नहीं पता होगा। तो एग्जाम में जो भी डिज़ाइन है उसके वैसा आपको मेथड फॉलो करना है। सिंगली आए तो जैसा मैंने लास्ट में बताया एग्जाम्पल में वही, डबली आता है तो अभी मैं बताती हूँ वैसे आपको डिज़ाइन करना है। चलो देन स्टेप 5 क्या होगा, टाइप ऑफ बीम। As mu is greater than mu lim, design the beam as doubly reinforced. Is it clear everyone? Yeah.
डिजाइन द बीम इज डबली रेनफोर्स्ड। चलो अभी हम डबली की डिजाइन करते हैं। तो हमें क्या चाहिए डबली की डिजाइन में? वी रिक्वायर टेंशन रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, वी रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो देखो यहाँ से हमें कौन कौन सी चीज़ पहले मिल सकती है? व्हाट वी कैन गेट द फर्स्ट, ये इक्वेशन में से वी कैन गेट द ASC। ये ASC पहले मिल जाएगा, क्यों? बिकॉज फ्रॉम दिस इक्वेशन MU हमारे पास है, MU लीम हमारे पास है, FSC we can find, so we can get the area of steel in compression। क्योंकि area of steel in tension के लिए also you required area of steel in compression। So very first step you required to do is to find area of steel in compression। कंप्रेशन की डिज़ाइन करते हैं तो उसका नोटेशन क्या होगा? ASC। कैसे मिलता है हमें एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन? यू हैव MU2 इज इक्वल टू MU माइनस MU लिम। चलो फाइंड कर दो पहले MU2 की वैल्यू। MU माइनस MU लिम करो, 483 माइनस 376.14। 106.86। हाँ 106.86। 106.86। So this is my moment of resistance of the auxiliary section। ये मुझे मिल गया। अभी मुझे क्या चाहिए? देखो ये इसमें से FSC चाहिए। FSC के लिए आई एक्सप्लेन यू कि ये है मेरा स्ट्रेन का वैल्यू। स्ट्रेन इनटू यंग मॉड्यूलस करूँगी, आई विल गेट द FSC वैल्यू। तो मुझे इसमें से क्या करना है? फर्स्ट आई वुड लाइक टू फाइंड FSC। FSC इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो पहले मैं क्या फाइंड करती हूँ? स्ट्रेन फाइंड करती हूँ। स्ट्रेन का इक्वेशन कोड में क्या लिखा है? 0.035 XU max माइनस D डैश 0.035 माइनस D डैश होल डिवाइड बाई XU max, होल डिवाइड बाई XU max। ठीक है, तो ये है मेरा स्ट्रेन का इक्वेशन फ्रॉम annexure G। क्लोज G 1.2 IS 456। चलो अभी ये इक्वेशन को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करती हूँ? ये स्ट्रेन इज इक्वल टू, मैं क्या करती हूँ? ऊपर और नीचे D से डिवाइड करती हूँ पूरा वैल्यू। तो 0.035 XU max by D minus D dash by D divide by XU max by D। Does it change my original equation by doing this? No। Right, so I have divided both the term by D। मैंने ऐसा क्यों किया? Because we have this XU max by D value for different grade of steel, तो it will be easy for me to find this strain value। ठीक है, तो चलो अभी XU max by D for Fe415 कितना है? This term 0.48। I will not explain every time कौन से पेज में है। Now you need to remember where to get this value। So 0.48 माइनस,
अभी यहाँ पे क्या लिखा है, डी डैश बाई डी. एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, व्हाट इज डी डैश. देखो ये बीम में जब आप कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे डिजाइन में, सपोज 3, तो यहाँ पर भी आपको कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेके ये टॉप का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डी डैश इज इक्वल टू टॉप कवर. ठीक है, तो ये कितना लेना है, जनरली यू कैन टेक 20 mm, टॉप एंड बॉटम बोथ. Right, 20 is the clear plus half of the diameter. So 20 plus 12 mm का half diameter. तो कितना होगा, 26. राइट, तो डी डैश हम कितना लेंगे, 26. So d dash is 26 by small d. Small d हमारा क्या है, 674 डिवाइड बाय अगेन 0.48 x max by d. चलो स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड कर लो. Find out strain. चलो कितना आता है स्ट्रेन, 0.032. 032. तो हमें स्ट्रेन मिल गया. ठीक है, नाउ एफएससी इज इक्वल टू Young modulus into strain. Young modulus is 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square into strain is 0.032. चलो find out stress. 6437.43. 6437.43. राइट, तो ये वैल्यू आई. नाउ देर इज वन लिमिटेशन फॉर दिस वैल्यू, एंड व्हाट इज दैट लिमिटेशन, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन. अच्छा, okay, so we have made one mistake. Our is given as FE415, हमें FE415 दिया है. ठीक है, so for FE415 direct value of FSC is given in table number FIS SP16. SP16 direct value is given, right? So your D dash by D ratio, what is D dash by D, calculate करके दो मुझे. Our D dash by D value 26 by 674. 0.038. So 0.038. 0.038 मतलब 0.04, राइट. 0.04 मतलब कि आपका वैल्यू 0.05 से भी कम है, एंड योर ग्रेड इज 415, राइट. सो योर एफएससी वैल्यू इज 355.
राइट। तो ये ना, ये पूरा एक डेरिवेशन है दैट आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू, दैट्स व्हाई यू वोंट एबल टू फाइंड आउट बाय दिस मेथड। यहाँ पे ये दिस इज टू मोर देन, किससे ज़्यादा है मैं आपको एक बार सिर्फ बता देती हूँ। इन IS 456 जो डेरिवेशन हमने नहीं किया, स्किप किया है, उसका पार्ट है ये, दैट वेन एवर द स्ट्रेस इन HYSD बार, सो स्ट्रेस इन HYSD बार आपको मिलेगा बाय दिस इक्वेशन, सॉरी दिस ग्राफ। वो ग्राफ बता देती हूँ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन फॉर HYSD बार। आपको एक बार तो मैंने बताया था इनिशियली। राइट, ये आपको बताया था मैंने ये पूरा, ठीक है। तो FSC आपको चाहिए अगर किसके लिए, HYSD बार के लिए, तो आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू है, देखो यहाँ पे 0.032, तो आपको क्या करना है 0.032, तो कहाँ आएगा 0.032, ये है 0.02002, सो 0.032, ये सही दिया है आपने वैल्यू, प्लीज समवन चेक। यस मैम, सही। 0.48 माइनस आंसर इंटू 0.035 या 0.48, ओके 0.032। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये स्ट्रेन है, 0 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट जो डॉटेड लाइन है वो है 0.0001 है, फिर यहाँ पे ये जो लाइन है ये है 0.001। तो यहाँ पे चार्ट अगर आप स्केलिंग करोगे तो समवेयर यू विल गेट 0.01, 0.02, 0.03, वैसे आपको यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी। वो जो अगर सपोज 0.03 यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, ये लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ पे, यहाँ से आपको खींचनी है, एंड दैट विल मर्ज ऑन टू दिस पॉइंट, और ये पॉइंट से लेफ्ट साइड जाना है। देखो यहाँ पे स्ट्रेस की डिफरेंट वेरिएबल वैल्यू मिली है, तो ये जो होगा वो आपका होगा FSC फॉर HYSD बार, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिलेगा, बट ये मेथड करने के लिए यू रिक्वायर प्रॉपर स्केलिंग, एंड दैट्स व्हाई डायरेक्टली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ FSC फ्रॉम टेबल नंबर F। सो 355 आपको डायरेक्ट SP16 में से ले लेनी है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेबल F SP16 FSC इज इक्वल टू 355 डायरेक्ट। मेथड ये है फाइंड करने की, बट एज द वैल्यू इज टू लार्ज and this you need to compare with IS 456 chart or IS 456 graph of stress strain। राइट, तो आपको FSC मिल गया। नाउ यू नो MU2 is equal to FSC ASC into B minus D dash। चलो MU2 क्या है हमारा 106.86, सो 106.86 न्यूटन mm में कन्वर्ट करो, सो 10⁶। FSC है हमारा 355, ASC इज अननोन, D क्या है हमारा 674, और D डैश क्या है मेरा 26। चलो पुट दिस वैल्यू एंड फाइंड आउट AS, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन।
फटाफट। 464.53. 464.53. Right, so this is my area of steel in compression. Abhi once I have this area, I need to find number of bar and choose the diameter of bar. So again the criteria is same for compression also, minimum 12 mm diameter you can use. So directly I will use SP16 page number. कौन सा था SP16 पेज नंबर 229 और 239 to find the number of bar. 229 page number 229. Page number 229 I can get the number of bars. Choose 12 mm diameter compression reinforcement. चलो कितने आते हैं चेक करो. दिस इज 464.5 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा 4.64 और 12 mm डायामीटर 4.64. ये देखो 4.52 है, ये नहीं ले सकते. अच्छा देन 5.65 नंबर ऑफ बार्स आर 5 बराबर. तो 5 बार इज टू मोर टू अकोमोडेट फॉर द स्पेसिंग क्राइटेरिया. सो वी विल इंक्रीज आवर डायामीटर ऑफ बार. इंस्टेड ऑफ 12 mm डायामीटर वी विल यूज, चलो कितना लेना है, इंस्टेड ऑफ 12 mm we can use 16 mm. 20 लेना है तो 2 नंबर्स बार आएंगे. जस्ट टेक 16 mm डायमीटर. विल टेक 16 mm. 2 आएगा तो आपको लगेगा कि सिंगली की डिज़ाइन हो रही है. विल टेक 16 mm. तो देखो 16 mm में 6.13 कितने बार आ रहा है 3. So number of bars are 3 numbers. So last statement, provide 16 mm, provide 3 numbers of 16 mm diameter compression reinforcement. Is it clear everyone? ठीक है. अगर 5 लेते तो क्या प्रॉब्लम होता, आई विल शो यू एट द टाइम ऑफ स्पेसिंग चेक, जो हमने सिंगली में भी नहीं किया है, डबले में भी हम कर लेंगे. ठीक है, तो स्पेसिंग चेक नहीं आएगा, मतलब जो बार आप अकोमोडेट करना चाहते हो 5 नंबर्स, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 बार, तो स्पेसिंग का भी क्राइटेरिया है कि ये 2 बार के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए. तो शायद से वो अकोमोडेट ना हो भी जाए ना भी हो, वी नेवर नो, अभी चेक नहीं किया इसलिए. राइट, तो वो हम भी चेक करके देन वी विल सी कि कितना होता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. I will continue this doubly design in next lecture. Probably in next lecture we will finish this design and we can start with the design of slab.